گلگت میں چٹان موت کا سامان بن گئی، بس الٹنے سے 26 مسافر جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ اموات میں اضافے کا خدشہ۔ پولیس کے مطابق بس سکردو سے راولپنڈی جا رہی تھی، بابوسر ٹاپ کے قریب بے قابو ہو کر چٹان سے ٹکرائی اور الٹ گئی۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمز، ایمبولینسز اور ہیلی کاپٹر بھی امدادی کارروائیوں میں شریک۔ فورس کمانڈر کا کہنا ہے کہ پاک فوج تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ ڈینگی کے وار، شہری بیمار۔ اسلام آباد میں 2 مریض چل بسے۔ پنجاب میں جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی۔ اسپتالوں میں متاثرین کی تعداد 10,000 سے تجاوز۔ خیبر پختونخوا میں مریض 2,500، پنجاب میں 2,410 تک پہنچ گئے۔ سندھ میں متاثرین کی تعداد 2,268 ہو گئی۔ بلوچستان میں 1,772 اور آزاد کشمیر میں 110 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزیراعظم کا امریکہ میں مشن کشمیر، پوری دنیا کو بھارت کا سیاہ چہرہ دکھانے کے لیے پرعزم۔ کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ آج امریکی سینیٹرز اور عالمی رہنماؤں اور اداروں کے وفود سے ملاقاتیں ہوں گی۔ 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ عمران خان کی کشمیر اسٹڈی گروپ کے بانی فاروق اتواری کو کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کو مزید اجاگر کرنے کی تلقین۔ وزیراعظم کے دورہ امریکہ کا بنیادی مقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی بولی، وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ میں کشمیریوں کی آواز بنیں گے۔ ٹرمپ سے ملاقات بھی اہم ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا آج آزاد کشمیر کے سیکٹر بھمبر جانے کا اعلان۔ کہتے ہیں کشمیر کی جدوجہد آزادی کو مکمل سپورٹ کریں گے، ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے۔ مزید بولے کہ شہباز شریف ڈیل کے حامی، نواز شریف کی ضد معاملات خراب کر دیتی ہے، دیگر جماعتیں دھرنے میں JUI کا ساتھ نہیں دیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، لیاری میں تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت۔ ہاکس بے روڈ کی صفائی نہ ہونے پر DMC ویسٹ پر اظہار برہمی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ تجاوزات ہٹانے اور کچرا اٹھانے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے۔ صوبائی وزراء اور حکام بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ کراچی گلستان جوہر میں کار پر فائرنگ، بھائی جاں بحق، بہن زخمی ہو گئی۔ مقتول کی سلمان کے نام سے شناخت، بہن کو اسپتال لے کر جا رہا تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے موٹر سائیکل سواروں نے تعاقب کے بعد فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ ٹارگٹ کلنگ کا شاہسانہ ہے۔ واقعے میں کسی قسم کی لوٹ مار نہیں کی گئی۔ کینسر کا مریض جو وہ بہت پریشان ہے اور اس کی مدد کی جائے۔ خان صاحب اب آپ بھول گئے ہیں، پہلے جب آپ کی والدہ کینسر کی مریض تھی اور اب جو دوسرے کینسر کے مریض ہیں وہ رول رہے ہیں، ان کو کوئی دوائیاں نہیں دے رہا۔ ہسپتال میں جو بھی پیشنٹ آتا ہے مجبور آتا ہے، غریب آتا ہے، اگر یہاں سے میڈیسن نہیں ملے گی تو وہ کہاں جائے گا؟ حکومت کی سنگین لاپرواہی، کینسر کے ادویات ختم۔ ہسپتالوں میں ادویات کی عدم دستیابی سے مریض سکتے میں آ گئے۔ ادویات نہ ملنے پر مریضوں کا مال روڈ پر مظاہرہ، بولے ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، دوائیاں بند کر کے ہمیں مزید مارنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اپوزیشن بھی مریضوں کی ہم آواز ہو گئی۔ سرگودا میں جعلی پیر نے جن نکالتے ہوئے 8 سالہ بچے کی جان نکال دی۔ ملزم وسیم شاہ کے تشدد سے زخمی اہل رضا 22 روز سے لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھا۔ تھانہ کینٹ پولیس نے مبینہ طور پر دباؤ ڈال کر لواحقین اور جعلی پیر میں صلح کروا دی۔ سعودی تنصیبات پر حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے ماہرین بھیجنے پر مشاورت نہیں کی۔ ممکن ہے UN تحقیقات کے نتائج قبول نہ کریں۔ غیر جانبدار تحقیقات ہوئیں تو ثابت ہو جائے گا کہ حملہ ایران سے نہیں ہوا تھا۔
मुल्क भर में 10,000 से ज्यादा डेंगू मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। डेंगू के मरीजों में इजाफे का खदशा है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि डेंगू से निमटने के लिए बहुत से इकदाम कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद में डेंगू कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर बना दिया है। डेंगू के फैलने की वजूहात को जानने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत जल्द डेंगू पर काबू पा लेंगे। डेंगू के मसले को सियासी जमातें फुटबॉल ना बनाएं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अगर हम पंजाब के सिर्फ अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो एक बड़ी तादाद तकरीबन 70% जो डेंगू के मरीज़ हैं पंजाब में वो कंसंट्रेटेड हैं पोठोहार के इलाके में। इसको हम इस आउटब्रेक के बाद मज़ीद स्टडी करेंगे कि इसकी क्या खसूसी वजूहात हैं कि इस दफ़ा ये ऐसा हो रहा है। बाकी वजारत सेहत इस्लामाबाद में भी आज सुबह हमने कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर, डेंगू कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर बना दिया, जहाँ जहाँ प्रिवेंशन के हवाले से फ्यूमिगेशन की या दीगर इंसेक्टिसाइड्स के ज़रिए ऐसे जगहों की निशानदेही करके वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत है कि जहाँ पे मच्छर की अफजाइश होती है, वो काम भी हो रहा है। कुछ हमारे हॉट स्पॉट्स हैं इस इलाके में, उनके ऊपर हमारी खसूसी तवज्जो है और हम एक मरबूत तरीके से इस आउटब्रेक को इंशाअल्लाह ताला एड्रेस कर रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफे के बाद बतदरीज इनमें कमी शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इस महीने के आखिर तक हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काबू पा लेंगे। बात करें बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान में भी डेंगू बेकाबू हो गया है। बलूचिस्तान में 2527 डेंगू वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डीजी हेल्थ के मुताबिक रवा माह डेंगू के केसेस की तादाद 91 तक पहुंची है। कोयटा से फजल तवाब होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। फजल तवाब, इस हवाले से क्या आदाद शुमार हैं आपके पास? डेंगू को बचाव के लिए क्या मुहिम जारी है यहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसा है कि बलूचिस्तान में रवा माह हमने देखा कि डेंगू वायरस का जो वबा है उसमें तेज़ी जो है वो देखने को आई है और ख़ास तौर पर गवादर, लसबेला और केच में जो डेंगू वायरस है उसके जो मरीज़ है उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इन अजला में जो हेल्थ की सहूलियात है उसका भी फुकदान है। अब महकमे सेहत के जो आला हुक्काम है उन्होंने नोटिस लिया हुआ है और इन जो मेडिकल टीमें हैं इन मुतासरा अजला में भिजवाई जा रही है और कल भी हमने देखा फजल तवाब, आप हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कैंसर की अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीज़ रुल गए हैं। हमें जीने के लिए अद्वियात चाहिए, कैंसर के मरीज़ दुहाइयाँ देने लगे हैं। अद्वियात मिलेंगी तो ज़िंदा रहेंगे, मरीज़ फट पड़े। अपोजिशन भी मरीज़ों के हकूक़ के लिए हम आवाज़ हो गई। मरीज़ों का कहना है कि अद्वियात बंद करके हमें मज़ीद मारने की साजिश हो रही है। अपोजिशन जमातों ने कैंसर की अद्वियात की बंदिश गैर मुनासिब करार दे दी है। कैंसर की दवाइयों के हवाले से हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस कैंसर की अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीज सख्ते में आ गए हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस कैंसर की अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीज सकते में आ गए। अस्पतालों में कैंसर की अद्वियात की बंदिश के खिलाफ मरीजों ने माल रोड पर मुजाहिरा भी किया था। मुतासरीन का कहना है कि कैंसर हल्की फुल्की बीमारी नहीं है कि गोलियां खाने से ठीक हो जाए, जीने के लिए दवाइयाँ चाहिए। मैं स्पेशली खान साहब को और उस्मान बुज़दार साहब को कहना चाहता हूँ कि खुदा आप जिस बेस पे आए हो इस बेस को कंटिन्यूस किया जाए, मेडिसिन बिल्कुल बंद ना की जाए और इसमें यास्मीन राशिद की बिल्कुल नाहली है। दीगर अमराज में मुब्तला अफराद कहते हैं हमारी दवाइयाँ बेशक बंद कर दी जाएं, लेकिन कैंसर के मरीजों पर तो रहम किया जाए। कैंसर का मरीज जो वो बहुत परेशान है और उसकी मदद की जाए। खान साहब अब आप भूल गए हैं पहले जब आपकी वालदा कैंसर की मरीज़ थी और अब जो दूसरे कैंसर के मरीज़ हैं वो रुल रहे हैं, उनको कोई दवाइयाँ नहीं दे रहा। अस्पताल में जो भी पेशेंट आता है मजबूर आता है, गरीब आता है, अगर यहाँ से मेडिसिन नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा। अपोजिशन जमातों ने भी कैंसर की अद्वियात की बंदिश को गैर मुनासिब इक़दाम करार दिया है। पाकिस्तान में ये पहला वाक़या हुआ कि कैंसर के पेशेंट्स को अद्वियात मुफ्त दी जाती थी। गरीब लोग हैं, मेजॉरिटी में कैंसर गरीब लोगों का जो यहाँ ट्रीट होते हैं, तो अमीर लोग तो बाहर के मुल्कों में जाके अपना इलाज करा लेते हैं। उनको अद्वियात मिलती थी मुफ्त। 5000 लोग हैं जो कैंसर के मरीज थे, गरीब लोग,
उनकी अद्वियात आते ही उन्होंने बंद कर दी। कैंसर जैसी बीमारी की मुसीबत ये है कि इसकी दवाई जितनी महंगी भी हो, जरूरत होती है। दवाइयाँ बंद करना सरासर नाइंसाफी है।